Good morning, students. Today's topic is third identity. Already we have learned two identities. First identity was a plus b whole square. Second identity was a minus b whole square. Today's topic is third identity, that is a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. So how we will get this identity? Earlier I have proved the identity 1 and 2 in worksheet 1 and worksheet 2. So this proof is similar to identity 1 and 2. How we can solve this? By class 7th method. That method was product type binomial to binomial. We will solve this way. A will be multiplied with both plus a b will be multiplied with both. This is the product of two binomials, and after solving we are getting these steps: a square minus ab plus ab minus b square, and ab and ab cancelled because one is negative, one is positive. So what is left? A square minus b square. So now in future whenever we will see two terms are same, ab only a plus b is there, a minus b is there. So what we will do, if it is a plus b and a minus b, their product will be there. So we will not solve in this way. Direct we will put this value a square minus b square. So for this some example you can see, this is the related with the worksheet number 3. So see question number 1. We have to solve this 2x plus 7y and 2x minus 7y. What thing is important here? This both number means expression should be same. So you can see here both are same, only in one bracket plus and one bracket minus. So here we will write by identity a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Here what is the value of a? You compare your question with these. Here instead of a 2x, instead of b 7y. Here also same thing, 2x and 7y. So here a is 2x and b is 7y. So solution of this will be a square minus b square. So direct we will put the value of a is 2x square minus 7y square. 2x square means 2x into 2x, 4x square, and 7 ja 49, y into y square. So this is answer of your question. See this question, x plus 3 minus y upon 2, sorry, x upon 3 minus y upon 2. Here this is also same. So here you see by identity same, we will write the every question we will write identity, and value of a and b will be different for different question. The identity are same but value of a and b will be as per the question. What is here? A is x upon 3. What is b? Y upon 2. So x upon 3 whole square minus y upon 2 whole square, a square minus b square, that I have written here. And when you will multiply these two times, what you will get? X square upon 9, and this will become y square upon 2 to the 4, y into y square. Now question number 2, here also given simplify using identity. So see, compare your question with your identity. This is your identity, compare. So this is a square minus b square, means this side written. This question is of right hand side of the equation. So how we will write this identity? We will write a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. The interesting thing for identity is we can write vice versa also. मतलब हम उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं. योर क्वेश्चन विल बी गिवन, आपका क्वेश्चन या तो इस फॉर्मेट में रहेगा या इस फॉर्मेट में भी रह सकता है. तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में है? इस फॉर्मेट में. क्वेश्चन नंबर 2 कौन से फॉर्मेट में है? इधर के फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इधर वाले फॉर्म में आंसर डालोगे. यदि आपका क्वेश्चन इधर के फॉर्म में है तो आपका आंसर किधर से लाना है? इधर से. दिस वाज क्वेश्चन, देन दिस फॉर्म, इस ये आंसर लाए. अभी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आपको इसको एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी में, और वैल्यू ऑफ ए इसको कंपेयर करो. ना इससे कंपेयर करो. ए क्या है? 81, बी क्या है? 19. अभी इस फॉर्म में इसको एक्सपांड कर दो.
तो 81 प्लस 19 और 81 माइनस 90, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इन दोनों का सम 100 है और इन दोनों का डिफरेंस 62 है। और बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। देखो आइडेंटिटी में कोई साइन नहीं है। a प्लस बी विद इन ब्रैकेट और a माइनस बी विद इन ब्रैकेट, कोई साइन नहीं है। मतलब व्हाट विल बी इन बिटवीन, क्या होता है यदि ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। तो दिस विल बी मल्टीप्लाई 100 इंटू 62, 62 100। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। इसमें दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एक्सप्रेसिंग दिस एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब वी हैव टू डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में इसको कन्वर्ट करना है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मतलब ऐसे फॉर्म में लाना है हमको, ऐसे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में ला के सॉल्व करना है। तो 195 इंटू 205 को कैसे हम लोग लिखें जिससे कि आइडेंटिटी में आ जाए, या तो इधर का है या तो इधर का है। तो इधर का तो दिस साइड 195 को हम लोग किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो वी कैन डू वन थिंग, इसको 195 इंटू 205 को इस फॉर्म में कोशिश करते हैं लिखने का। तो इसको कैसे लिखें जिससे कि a प्लस बी और a माइनस बी बन जाए। सेम नंबर को ऐड करने से इतना है और उसी नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से इतना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट वाला। तो इसको क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 93 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 7। तो ये नंबर ऐसे दिया रहेगा जिससे कि ये पॉसिबल हो। ये ब्रैकेट में सेम नंबर आएगा, 100 प्लस 7, 100 माइनस 7, तभी हम लोग वी कैन अप्लाई हियर आइडेंटिटी, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि ये सपोज फॉर एग्जांपल इसको 94 लिख देंगे तो इसमें फिर दिस आइडेंटिटी वी कांट अप्लाई, फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आइडेंटिटी से बनेगा ही नहीं। तो क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा देगा कि ये पॉसिबल होगा। तो 100 प्लस 7, 100 माइनस 7 हो गया। अब देखो आपका ये आइडेंटिटी लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, आपका a हो गया 100 और b हो गया 7। फिर आइडेंटिटी लिखिए, a और b को लिख दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b क्या है आपका 7, 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 100 इंटू 100 10,000 और 7 7 जब 49। इसको आगे सॉल्व कर लेना, इसको सब्ट्रैक्ट करके आई हैव नॉट रिटन, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लेना। 10,000 माइनस 49 का आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ देखो 195 इंटू 205, इसको भी कैसे करें जिससे कि ये सेम नंबर का प्रोडक्ट, और ये ज़्यादा है मतलब ये सम बनाएंगे, ये कम है मतलब ये डिफरेंस बनेगा। तो किसका सम और डिफरेंस सेम नंबर करे, तो इसको पहले देख लो। 200 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 200 माइनस 5। तो ऐसे दोनों को लेना है जिससे कि उसका पेयर बन जाए, a प्लस बी ए माइनस बी आए। भले ये a प्लस बी बाद में और a माइनस बी पहले है, दैट इज़ नॉट मैटर। यहाँ देखो a प्लस बी पहले है, a माइनस बी, मैं यदि a माइनस बी को इधर लिखूँ, a प्लस बी को उधर लिखूँ तो भी सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। बिकॉज प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो a माइनस बी पहले आ गया और फिर a प्लस बी है, सो दैट इज़ नॉट मैटर, हम लोग लॉ लगा सकते हैं। और मैं यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए इस लॉ को नहीं लिखा हूँ, सॉरी लॉ बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी को मैं नहीं लिखा हूँ, तो इस आइडेंटिटी को नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट a और b लिख रहा हूँ। तो आपका a क्या है यहाँ 200 और b क्या है 5। तो ये हो गया आपका 200 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25। इसको आप घटा के लिख देना यहाँ सब्ट्रैक्ट करके। अगला क्वेश्चन देखो 12.4 इंटू 11.6, इसको भी ऐसे आपको स्प्लिट करना है। तो जो बड़ा है उसको पहले स्प्लिट करो। 12.4 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 12 प्लस 0.4 कर देते हैं। 12.4 को व्हाट वी कैन राइट 12 प्लस 0.4, तो ये क्या बनेगा 11.6। 12 माइनस 0.4, क्योंकि 12 में 0.4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही मिलेगा 11.6। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि आपसे ये स्प्लिट होके सेम नंबर मिले। क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन सच ए वे, मैं यदि क्वेश्चन को यहाँ बदल दूंगा, इसको वही रखूंगा, इसको चेंज करूंगा तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी में सॉल्व नहीं हो पाएगा।
तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको पहले ज़्यादा वाले को स्प्लिट करना है, फिर कम वाले को माइनस के साथ स्प्लिट करना है। तो ये हो गया। अब यहाँ फिर वही आइडेंटिटी लिखेंगे। यहाँ a क्या है 12 और b क्या है 0.4। तो यहाँ 12 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर है, इसको आगे सॉल्व कर देना। आई डोंट हैव स्पेस। 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144 और 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16 और आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। सो योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मतलब ये वर्कशीट 3 यू कैन सॉल्व। ये पूरा वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो। यदि इफ़ यू थिंक मोर क्वेश्चंस आर देयर यू कैन लीव 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। आप हर जैसे 6 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एनी 4 कर लो, जो सिमिलर है उसको छोड़ सकते हो। इट इज़ अप टू यू। सो यू कंप्लीट इट। In next video we will see worksheet number 4, another identity we will see. Okay.